Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Um, Today we are going to start with a new topic, that is transportation. Okay. So let's start with the topic. Transportation comprises freight service together with the supporting and auxiliary service by all modes of transportation. यानी ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? टू कैरी द गुड्स एंड पैसेंजर यानी कि पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर to make the movement of the things or human beings, right? So now today we are going to see the advantages, disadvantages and the kinds of the transportation, what are their facilities and how they are help to the business organization for smoothly running their business. So we are having total four types, that is rail, road, air and water. See, for the movement of the goods and the international carriage of the passenger, it means that for not only for moving the within the country but outside the country also we can able to move with the help of the transportation. Okay. See, you have already studied the comparative advantage and disadvantage of different modes of transportation in earlier classes. Their service are considered to be important for business since speed is of essence in any business transaction. See, what they said that for running smoothly the business organization, their activities, we need to have the proper transportation facility, because transportation only the one thing which make it possible to make the available of the goods to the customer timely where they want. Okay. Their service are considered to be important for business since speed is of essence in any business transaction. Also, transportation remove the hindrance of the place. It means that most of time what happen, most of time what happen, the place of the production of the goods is somewhere else, and the consumer, those who wants to consume that goods, they are staying somewhere else. So to remove the distance between the production place and the consumption place, we need a transportation. ठीक है, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि हम कई ऐसे गुड्स का भी कंजम्पशन करते हैं जो हमारे आसपास या फिर हम जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ नहीं है उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी, बहुत दूर है, बट स्टिल वी यूज़ इट बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है कि जो भी गुड्स प्रोडक्शन हो रहे हैं, मार्केट में डिमांड हो रहे हैं, ठीक है, वो भले ही हमारे जगह से दूर हो, जहाँ हम हैं हमसे दूर हो, बट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाता है. सो बिजनेसमैन के और कस्टमर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिमूव करने में और बिजनेस मैन की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस. इट मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. We need to develop our transportation system to keep the pace with the requirement of our economy. क्या कहा जा रहा है, जैसे हमारी इकोनॉमी की डिमांड है उस तरह से हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. ठीक है, वी नीड द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रोड्स विद सफिशिएंट विथ एंड हाइट क्वालिटी. वी हैव अ फ्यू पोर्ट्स एंड दे टू आर कंजेस्टेड. बोथ द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री नीड टू बी proactive and view the effective functioning of this service. Student, you know what, today we are in a developing situation, we are not developed. The reason behind that is most important infrastructure facility also. You know what, this infrastructure also very much affect to our this developmental goal. बिकॉज देखिए आज हमारे कंट्री में ऐसे कई पर्टिकुलर लोकेलिटी है, एरिया है जो बहुत इफ़ेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है, बट वहाँ पर बिजनेस हम सेटअप ही नहीं कर पाते. रीज़न है कि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं, दैट ऑल्सो स्पेशली द रोड फैसिलिटी. होता क्या है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब कोई बीमार हो जाता है सो उनको भी प्रॉपर हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए प्रॉपर रोड फैसिलिटीज़ नहीं होती है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देखी जाती हैं. ये भी एक कॉज है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली उनका गोल अचीव नहीं कर पाता है. द रीज़न बिहाइंड कि कस्टमर पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंच ही नहीं पाता है जहाँ से उसको गुड्स कंजम्पशन के लिए मिले.
ठीक है. We have a few ports, ports and they too are congested. Next आगे देखिए. Both the government and industry need to be proactive and in the view the effective functioning of the service as a necessary for providing a lifeline to a business service. In the sector like agriculture and food, there are massive loss of product in the process of the transportation and the storage, and this is because of no proper infrastructure facility. Okay. Because you know what happened when the goods are produced in agriculture, farming, food and all, then they are transferring the goods to the other place where the need of the food are needed, or we can say that at the place of the consumption. But by the time carrying that goods through the transportation, because of not proper road facility and all, that goods are sometimes get damaged during the transportation only and get affected the quality also. सो दैट्स वाई नीड द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि देखिए होता क्या है, जब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो किसी भी गुड्स की, स्पेशली पेरिशेबल आइटम की एक लाइफ टाइम होती है. अगर उस लाइफ टाइम से ज़्यादा हम स्टोर करके ट्रांसपोर्ट में लेके जाते हैं, ठीक है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि वो बिगड़ भी सकते हैं, ठीक है, ख़राब हो सकते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, ठीक है. जैसे अभी देखिए हम लोग एप्पल्स कंज्यूम करते हैं जो कि पूरे कंट्री में प्रोडक्शन नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोडक्शन होता है, पर्टिकुलर स्टेट में, बट स्टिल वी यूजिंग इट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन अगर मान लीजिए वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी ना हो, तो आपको पता है जब तक एप्पल प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन तक आएगा तब तक वो डैमेज हो चुका होगा. सो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी गुड्स फ्रेश ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंज्यूमर के पास, वो फ्रेश में ही पहुंच जाए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं. Warehousing. Storage has always been an important aspect of economic development. Warehousing मतलब नाम से आपको पता चल गया होगा. पता है हम लोग गोडाउन बनाते हैं जनरली अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, उसी को हम लोग वेयरहाउसिंग भी कहते हैं. देखिए, the warehouse was initially viewed as a static unit for keeping and storing the goods in the scientific and systematic manner so as to maintain their original quality. यहाँ पे गोडाउन यानी कि विद प्रॉपर फैसिलिटी होती है. जैसे आप अगर पैरिशेबल आइटम रख रहे हो तो उसके लिए जो भी स्टोरेज सिस्टम रिक्वायर्ड है उसके साथ वेयर हाउस बनाया जाता है, जिससे आपकी जो क्वालिटी है गुड्स की जो आपने स्टोर किया है वो एज़ यूजुअल मेंटेन रहे टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन. एंड माई डियर स्टूडेंट, एज यू ऑल आर नो दैट कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो या प्रोड्यूस हो द सेम टाइम वो कंज्यूम हो जाए. देयर मे बी द चांसेस कि प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस्ड और कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप हो, ठीक है, बट स्टिल उन गुड्स की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हमें वेयर हाउस में वो सारी फैसिलिटी को रखना होता है. Values and usefulness. The typical warehouse received the merchandise by rail, trucks or bullock cart. The items were moved manually to the storage within the warehouse and hand-filled in the stack on the floor. They are used by the manufacturer, importers, exporter, wholesaler, transport business, कस्टम एक्सेट्रा. ये लोग वेयर हाउस फैसिलिटी यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, इंपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर होते हैं, ये लोग लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं. किसमें? लार्ज क्वांटिटी में. सो देयर इज़ नो चांस कि जितना भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं सेल करने के लिए, वो सारा का सारा एट अ वन टाइम ओनली कंजम्पशन के लिए चला जाए. इट इज़ नॉट नीडेड, राइट? सो दैट्स वाई दे need a warehouse facility. Today, a warehouse have ceased to be a mere storage service provider and have really become the logistical service providers in the cost efficient manner. इसका मतलब क्या पता है? पहले जनरली जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर होते थे उन्हें अपना खुद का स्टोरेज वेयरहाउस बनाना पड़ता था, विच इज़ फाउंड दैट इट्स कॉस्टली, बिकॉज जो फंड वो वेयर हाउस स्टोर में गोडाउन में
डालते हैं दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, बिकॉज उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है जो उनको गुड्स सेल करने पे ही होने वाला है। तो अभी क्या हो गया कि इंस्टेड ऑफ अपना खुद का वेयर हाउस और गोडाउन बनाने की जगह पे बिजनेसमैन एक्सटर्नली बाहर से वेयर हाउस फैसिलिटी को लेते हैं, और हमारे यहाँ पे वेयर हाउस और स्टोर फैसिलिटी का बिजनेस भी होता है, जिनका मेन पर्पस क्या होता है, सिर्फ लोगों के गुड्स को स्टोर करना, वेयर हाउस में रखना और सर्विस देना। जैसे इससे क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना, सो इंस्टेड ऑफ बिजनेसमैन अपना खुद का वेयर हाउस बनाने या रेंट पे लेने से अच्छा क्या करते हैं, जो पब्लिकली वेयर हाउस अवेलेबल है वहाँ पे ही अपने गुड्स को स्टोर करवा देते हैं, जिसका उन्हें एक नॉमिनल चार्ज पे करना रहता है, बकायदे रेंट, ठीक है। सो इससे दो लोगों का बेनिफिट है, एक तो बिजनेसमैन का जो फंड वेयर हाउस स्टोर के लिए इन्वेस्ट होने वाला था वो बच जाता है, जो वो अपने अदर बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो वेयर हाउस सर्विस के थ्रू अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, in the right physical form at the right cost, a modern warehouse are automated with the automatic conveyors, computer operated cranes and forklifts for moving the goods, and also uses of the logistic automation software for warehouse management। यानी कि आज हम क्या देखते हैं कि वेयर हाउस जो बिज़नेस चलाते हैं, ठीक है, वो लोगों ने इतनी अच्छी फैसिलिटी करके रखी है वेयर हाउस में कि हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली होता है, प्रॉपर स्टोर होता है, किसी भी तरह के डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं, इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन में भी इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस वी विल डू इन द नेक्स्ट lecture. If you having any kind of the doubts, so you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. And one more thing, student, if you understood my whole lecture and if you like it, so please like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you.